In the last class, we were discussing about that what is the benefits when we are purchasing the existing business, like why it is better to purchase the existing business. So many of you said that कि ma'am it is basically minimizing the risk. That is 100% truth. कि आपके risk को बहुत ज़्यादा minimize हो जाता है जब आप एक existing business को purchase कर लेते हैं. बना बनाया खाना खाने में किसको नहीं अच्छा लगता? Everyone likes, right? But making it from the initial stage and first learning that how we are going to cook, this is a different thing. So basically, in the last class, what we discussed that how we are going to buying an existing business. So we discussed about the 5 stages, like finding a suitable business, getting the information you need, determining the price, negotiation, negotiating the deal, and finally financing the transaction. So in that, we also discussed that is the price right? Like obviously, somehow the entrepreneur or any person who is basically ready or willing to purchase the business, that there is no surety कि भाई आपको जो भी प्राइस में वो दे रहे हैं business, you are ready to purchase. ऐसा होता है कई बार कि बहुत एक्सपेंसिव भी होता है आपका प्राइस, तो negotiation is always required. मतलब हम bargaining करते हैं यहाँ पर कि हमें इतने में हम ले सकते हैं और वो ले सकते हैं. तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स थे जो मैंने बताया था आपको कि लाइक अगर सेलर्स को अर्जेंटली बेचना है तो ऐसे केस में बहुत लो कॉस्ट में भी वो प्रोडक्ट को सेल कर देता है. जैसे वहां पर बैड डेप्ट है, बैंक का बैड डेप्ट, बैंक का लोन है उसके सर पे, तो भाई उस ऐसे केस में तो उनको पैसे की जरूरत अर्जेंटली है, नहीं तो उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन हो सकता है. तो ऐसे केस में यू कैन बार्गेन एंड यू कैन बेसिकली टेक द बिजनेस इन लो कॉस्ट एज वेल. If the seller having issues or he or she is suffering from the ill health, so definitely in that situation also we can negotiate the price or we can down the price. ठीक है. In the next situation, if we are talking, then it's about that the way how you are basically negotiating. Like some people are very experienced, so they understand about the value of the business and they are the best negotiator or they are very much talented in negotiation. So how you're dealing with the seller, that matters. ठीक है. Sometimes if there is a recession situation, in that case also the price of the business will be decreased. And if the market value is very much increased and there are so many people who are basically willing to purchase that business, so in that situation, seller is not going to minimize the cost. So we understand that what are the various factors which is affecting the price basically. Okay. In the last class, we also understand about the information is the key. Like if you are purchasing any of the business, like how it was working in the early time or how it was working in the past, that matters. लाइक एग्जैक्टली अगर हम कोई भी बिजनेस को देख ले, अगर आज के टाइम पे अगर हम कोई भी कंपनी उठा ले, नेस्ले हो गया आपका, फिर हिंदुस्तान लेवर हो गया आपका, या फिर मैगी दैट इज अ ब्रांड ऑफ द नेस्ले, तो इन सब का नाम अगर हम जैसे सुनते हैं तो वी आर थिंकिंग अबाउट द रेप्यूटेशन, राइट. सो रेप्यूटेशन की वजह से और मार्केट में ऑलरेडी इक्विटी होने की वजह से भी कई बार ये जो कंपनीज है वो कभी लॉस में नहीं होती हैं. लेकिन ऐसे बहुत सारे बिजनेस हैं जो हमेशा लॉस में रहे हैं या फिर वो सस्टेन करना उनके लिए मुश्किल है. तो ऐसे केस में आपके पास उनका पास डेटा होना बहुत जरूरी है कि लाइक कंज्यूमर बेस, कस्टमर बेस इनका है कि नहीं, मार्केट शेयर क्या है. So that is why we are going to discuss about the information is the key when we are purchasing an existing business. ठीक है. अगर बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जो ऑलरेडी शट डाउन हो रखे होते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा हो कि बहुत सारे पहले जो कॉटन मिल्स वगैरह थे वो आजकल शट डाउन हो रखे हैं, आपके शुगर मिल्स बहुत सारे थे जो शट डाउन हो गए. तो बहुत बार हमें कोई रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाता है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन करने के बावजूद कब कौन कौन से केसेस में हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाता है. जैसे कि प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप जो होते हैं, जो छोटे मोटे बिजनेसेस चलाते हैं, तो उनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे भी नहीं मिलेगा. जो छोटे मोटे प्रोप्राइटर्स हैं, जैसे सोल प्रोप्राइटर हैं. अगर हम बात करें आपके वैसे बिजनेसेस का जो कि आपके ऑलरेडी क्लोज है और काफी साल से वो बंद हो रखे हो, रनिंग स्टेज में नहीं है, ठीक है, तो ऐसे टाइप के जो बिजनेस होंगे इनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन निकलवाना बहुत मुश्किल होगा, कॉम्प्लेक्स होगा. और आपको तो पता है कि जो सोल प्रोप्राइटर है वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट भी नहीं कराते. सो दैट इज नेवर गोइंग टू क्रिएट अ पॉजिटिव, या बोलते दैट इज नेवर एबल टू गिव अ क्लियर पिक्चर अबाउट द बिजनेसेस इन शॉर्ट. ठीक है. सो हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन, वट एवर इंफॉर्मेशन यू आर गिवन,
द गोल्डन रूल इज टू बी स्केप्टिकल एंड गेट हेल्प, यानी जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है फिर भी आप उसको प्रॉपरली एनालाइज कीजिए। तो यहाँ पर कुछ इश्यूज हैं आपके प्रोस्पेक्टिव बायर्स, देयर आर सम ऑफ द इश्यूज द प्रोस्पेक्टिव बायर शुड बी लुकिंग एट। मतलब कुछ इश्यूज है जिसके बारे में आपके बायर्स, जो प्रोस्पेक्टिव बायर्स, वो बायर्स जो खरीद सकते हैं बिजनेस को, प्रोस्पेक्टिव बायर को देखना चाहिए, दे शुड बी looking that, right? What are those points? First one is ask about the market share of the business that's for sale and consider whatever the market share can be increased, whether the market share can be increased. तो देखिए बिजनेस खरीदने का दो तरीका है, या तो पूरा का पूरा एसेट ट्रांसफर करा लीजिए, पैसे दीजिए, एसेट ट्रांसफर। अदरवाइज यू कैन परचेज द शेयर। आप लोगों को पता होगा कि जो भी कंपनी, जो भी बिजनेस है और अगर आपकी लिमिटेड कंपनीज हैं तो दे आर एबल टू सेल द शेयर, और अगर प्राइवेट कंपनी के भी शेयर्स जो है वो ट्रांसफर किए जा सकते हैं दूसरे ओनर को, बट पब्लिक के पास वो शेयर्स अवेलेबल नहीं होते। तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर मार्केट शेयर अगर वो अवेलेबल करा रही है वो कंपनी और वो मार्केट शेयर देने के लिए रेडी है, तो ये देखिए कि उसका मार्केट शेयर का वैल्यू क्या है, मतलब उसका वैल्यू इंक्रीज होगा या नहीं होगा इंक्रीज। ठीक है, पूरे मार्केट, टोटल मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाइए। ठीक है, कॉम्पिटिटर्स के साथ क्या लिंक है इनका, मतलब कॉम्पिटिटर के साथ हिसाब से देखा जाए तो क्या पोजीशन है। उसके अलावा इनके प्रोडक्ट के बारे में देखिए कि लाइक हाउ देयर प्रोडक्ट वाज अर्लियर वर्क, क्या इनका प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में लॉन्ग टाइम तक टिका, मतलब उसका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है, क्या वो प्रोडक्ट उनका जो था, जो ऑफर किया इन्होंने बहुत पहले, वो क्या मार्केट में चला या नहीं चला। ठीक है, सो व्हाट वाज द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ऑफ देयर प्रोडक्ट। ठीक है, और कितने सारे प्रोडक्ट को ये ऑफर कर रहे हैं, टोटल टर्नओवर क्या है बिजनेस का, ये सारी इंफॉर्मेशन निकलवाइए। उसके अलावा इनका प्रोडक्ट का प्राइस और क्वालिटी क्या है, लाइक ये मार्केट में जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं इनका प्रोडक्ट का इमेज क्या है, कंज्यूमर क्या सोचते हैं इनके प्रोडक्ट के बारे में, इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाइए। फिर इन्वेस्टिगेशन कीजिए आप रिलेटेड विद द वायबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, एसेस कीजिए कि इनके पास अभी एम्प्लॉय कितने हैं और किस, मतलब कौन एम्प्लॉयज हैं, क्या इनका वर्कफोर्स क्वालिटी क्या है, और एंड वेदर दे आर विलिंग टू वर्क और नॉट, और ये इस कंपनी में, इस बिजनेस में काम करने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं। ठीक है, उसके अलावा प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को आप देखिए कि इनका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, और एक और भी चीज देखिए कि जो सेलर है, मतलब जो सेल कर रहा है बिजनेस को, उसमें उसके अंदर विलिंगनेस कितना है आपके बिजनेस को सेल करने का, मतलब वो कितनी जल्दबाजी में है, और मतलब वो कितनी जल्दी से जल्दी सेल करना चाहती है। ठीक है, तो खुद से उनकी इच्छा क्या है, मतलब इट्स नॉट अबाउट द एग्रीमेंट एंड ऑल, बट व्हाट देयर पर्सनल व्यू टू सेलिंग द पर्टिकुलर बिजनेस। उसके अलावा आप ये देखिए कि यहाँ पर आप उसके अलावा उस बिजनेस में आप लैक को देखिए कि क्या कमी है जो हम इंप्रूव कर सकते हैं, टेक्निकल रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है इस बिजनेस के लिए। ठीक है, क्या क्या चेंजेस हम लेकर आ सकते हैं, क्या हमें और भी स्किल्ड वर्कर की जरूरत है, टेक्निकल वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है, टेक्निकल वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट है, ये सब चीजों को एनालाइज कीजिए। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, The buyer should however get permission from the seller before approaching the client. तो यहाँ पर जो है आपको ये सारे पॉइंट्स का ध्यान रखना है क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। उसके अलावा अगर बिजनेस लीज एग्रीमेंट पे बेस्ड है तो उसके अलावा आपको ये भी देखना चाहिए कि लीज एग्रीमेंट आपको ट्रांसफर होगा कि नहीं। कई बार ऑफिस वगैरह जो होती है वो लीज पर ली हुई होती है 99 ईयर्स के लिए, तो वी हैव टू सी दैट एज वेल। ठीक है, उसके अलावा आपको ये देखना चाहिए कि जो आपका बिजनेस जिस कौन से एरिया में जो रन कर रहे हैं, क्या इनके टारगेट कस्टमर वहीं पर लोकेटेड है या और भी कोई मार्केट एरिया है जहां पर हम अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं इस बिजनेस के थ्रू, तो इसको एनालाइज कीजिए। तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है, जो जानकारी है, इन सारे मैटर को लेकर यू हैव टू कलेक्ट एंड यू हैव टू एनालाइज। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू आर परचेजिंग द effort and dedication of the other person, but what is the reason and why he is willing to sell the company or selling the business, that's matter। ठीक है, तो ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन को आप एनालाइज कीजिए। प्राइस इज अ डिफरेंट फैक्टर। once you are totally comfortable with the business, then negotiation will be done accordingly, right? But once there is a lack of information or half information or the relevant information is not provided to you, maybe you can take the wrong decision
And once you will take the wrong decision, then that is going to affect your whole entrepreneurship journey, because maybe you will start the business, but you will be बोल सकते हैं ना, you will be in the complicated or complex situation then. So these information you need to collect first. आ रही बात समझ में सबको? Everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Once all these information का scenario खत्म, pricing done, then we are going to make the deal. अब हम डील करेंगे, ठीक है? यानी अब हम किस तरीके से प्रोडक्ट परचेज, मतलब किस तरीके से बिजनेस परचेज करेंगे. मार्केटिंग पढ़ाते पढ़ाते ना प्रोडक्ट वाइज दिमाग में रहता है, तो किस तरीके से हम बिजनेस परचेज करेंगे, दैट इज गोइंग टू वर्क. ठीक है? सो द डील कैन बी डन इन द टू वे. यानी बिजनेस आपको दो तरीके से सेल किया जा सकता है, जो मैंने आपको बताया भी था. एक तो शेयर के थ्रू, जैसे आपने किसी कंपनी का अगर 51% शेयर खरीद लिया, तो एक तरीके से आप उस कंपनी के ओनर हो गए. ठीक है? सो अगर आप शेयर्स परचेज करना चाहते हो तो शेयर्स परचेज कर लीजिए, 51% शेयर परचेज कर लीजिएगा, ओनरशिप अपने आप आपको मिल गया. लाइक 51% शेयर इज विथ यू, दैट कंपनी विल बी योर्स, राइट? जैसे गवर्नमेंट कंपनी का क्या होता है कि गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जिनके पास 51% शेयर है कंपनी का, राइट? So here either you can do the first thing, like you can purchase the shares of that business or company, or second thing is acquisition of the assets. Like अगर या तो आप शेयर्स ले लीजिए या पूरा का पूरा उनका एसेट्स को परचेज कर लीजिए. Like whatever assets, whatever capital they basically invested in their business, like machinery and all those things, the office area, the location, for that you have to repay. ठीक है? उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा. Sorry, you have to pay. So this is the two way through which we can deal. Either we can purchase the shares or acquire the assets. Clear? Yes, Kalpana. बोलो बेटा. Yes, Kalpana, I'm not able to hear you. मैम अक्वायर करेंगे तब तो पूरा बिजनेस खरीदेंगे, बट शेयर्स खरीदेंगे तब तो हाफ या 3/4 भी हो सकता है ना. 51% शेयर, 72% शेयर, लाइक 50% से ज्यादा खरीदेंगे तो ही आपको ओनरशिप मिलेगा. 50% से कम में आपका ओनरशिप आपको ट्रांसफर नहीं होगा. आ रही बात समझ में मुस्कान? यस मैम. मैम आवाज आ रही है मेरी? हाँ अब आ रही है, बोलो बेटा. मेरा सेकंड नंबर क्या बोले मैम? नहीं, एक्विजिशन ऑफ एसेट्स. एक्विजिशन का मतलब होता है एक्वायर करना, खरीदना. जैसे मान लो कि कोई पर्सन जो है वो एक कंप्यूटर सेंटर को परचेज करा, कंप्यूटर सेंटर जहां पर कंप्यूटर्स की ट्रेनिंग दी जा रही है. ठीक है? तो या तो वो क्या करेगी, वो जितने भी कंप्यूटर्स वगैरह हैं उन सबका वैल्यूएशन करेगी, उस पर्टिकुलर पूरे स्टोर का वैल्यूएशन करेगी, और फाइनली जैसे पूरे 20 लाख रुपीस का पूरा एसेट्स वगैरह मिलाकर हो रहा है, तो यू हैव टू पे 20 लाख रुपीस. So that is acquisition of assets. ठीक है? But if you are purchasing the shares, अगर आप शेयर्स खरीद लेंगे, कंपनी के शेयर्स परचेज कर लीजिए 51%, तो ऐसे केस में भी आप ओनर बन जाइएगा बिजनेस से. क्लियर हो गई बात? क्लियर? यस मैम. So in the case of the acquisition, it might be possible that 100% ownership will be transferred. But in the case of the shares, it totally depends on how much percent of share you are purchasing. If you are purchasing more than 50%, so definitely you will be the owner. ठीक है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो पहले एग्जिस्टिंग कंपनीज है उनके पास भी शेयर्स है, तो दे कैन ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ द कंपनी. क्लियर हो गई बात? एवरीवन clear? Yes ma'am. Okay. Now let's move toward that what is the advantages and disadvantages of purchasing an existing business. So never think that there are only advantages. सिर्फ फायदे हैं ऐसा कुछ नहीं है. अच्छा, ये टॉपिक में बढ़ने से पहले I just want to tell you all that today's success story is about Zerodha. So I guess you all heard about this name, Zerodha. सुना है सब लोगों ने? Yes ma'am. Zerodha सुना है ना? So we are going to discuss about that in today's class. चलिए हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. तो एडवांटेज क्या है एग्जिस्टिंग बिजनेस को परचेज करने का? देयर इज अ मच लोअर रिस्क ऑफ फेलवर. यानी फेल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि चलता फिरता, वही मैंने बोला था, चलते फिरते ट्रेन में बैठोगे तो कहीं ना कहीं डेस्टिनेशन तो मिलेगा ही.
है ना, चांसेस है। तो यहाँ पर रिस्क आपके फेवर के कम है, क्योंकि उस कंपनी के पास ऑलरेडी कस्टमर बेस है, मार्केट है, और आपको बहुत ज्यादा लेट वर्क करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, ठीक है। सेकेंड बात करें तो व्हेन यू टेक, जब आपने टेक ओवर कर लिया उस कंपनी को, तो वो कंपनी ऑलरेडी रनिंग स्टेज में अगर है, देखो यहाँ पे एक केस है, if that company is in the running stage, it means that is already working in the market. So from the first day you will get the profit, मतलब पहले दिन से ही आप प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर दोगे, पैसे आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जब आप नए बिजनेस को स्टार्ट करते हो फ्रॉम स्क्रैच, when you are basically starting the new business, so in that situation बिजनेस को स्टार्ट प्लान करने से लेकर रजिस्ट्रेशन एंड पूरे लीगल रिक्वायरमेंट्स और मार्केटिंग रिसर्च वगैरह करते करते कम से कम 5 से 6 महीने आपको जाएंगे बिजनेस को सेट करने में। बट इन दिस सिचुएशन इट माइट बी पॉसिबल दैट द टाइम विच इज इनकर्ड when we are purchasing an existing business, that is very less as comparison to starting a new business. And from the first day, जब हम नया बिजनेस शुरू करेंगे तो हमारे पास कोई गारंटी नहीं कि पहले दिन से ही प्रॉफिट आना शुरू होगा। लेकिन एग्जिस्टिंग बिजनेस में दिस बेनिफिट इज ऑलवेज, वी कैन से इट इज ऑलवेज अटैच्ड, कि भाई आपको फर्स्ट डे से ही आपके कैश इनफ्लो होना शुरू हो गया, ठीक है। थर्ड there are already proper business concept and the proper business organizational concept. business structure जो होगा आपको already clarified होगा, तो business structure में भी आपको ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। कस्टमर बेस आपके पास होगा, तो कस्टमर बेस अगर है तो you have a chances of referral as well. देखते हो ना रेफरल कोड का आजकल जमाना है ना, टाइम है रेफरल कोड का, तुम लोग तो देखते होगे कि भाई Yes, कोई ma'am. भी, हाँ अभी देखो माई ग्लैम एक करके ब्यूटी प्रोडक्ट की कंपनी आई है, they are using a referral code a lot, like if you will start referring your friends you will get discount and free products from that. So if you have established customer base, definitely you have a chances of referrals and recommendation, ठीक है, so you can basically increase and grow your business. Next one is established suppliers, like from whom company is dealing with, like from whom they are basically dealing with in the various matter. like अगर सप्लायर्स की बात करें तो अगर आपकी बिजनेस में आप अपने प्रोडक्ट को कहाँ से मंगवाते हो, कौन सप्लायर्स है, वो भी स्टैब्लिश है, तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है नए सप्लायर को। नेक्स्ट है आपके पास ट्रेंड एम्प्लॉइज है, तो कोई भी नया आपको काम सिखाने के, और ये हाँ हो सकता है कि आप एडिशनल कुछ टेक्निकल इंप्रूवमेंट करते हैं तो उसके लिए आपको ज्यादा स्किल्ड पीपल और वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट हो, दैट इज अ डिफरेंट केस। But yes, you have already trained employees. So somehow they are aware from the market scenario and they are aware about their work. So you don't need to invest a lot on the training. But yes, if you are hiring the new people, you just require to give them training. Next one is there is a बोल सकते immediate credibility and perception of success. Like if you took the loan for purchasing the existing business, your credibility will be very high. बिकॉज देयर इज अ लेस चांस ऑफ द फेलियर, तो आप बहुत जल्दी अपने लोन के पैसे को भी वापस कर सकते हो, सक्सेस इज हाई। उसके अलावा सेलर लाइकली टू लेंड सपोर्ट एंड मे असिस्ट विद द फाइनेंसिंग, और जो सेलर है वो आपको सपोर्ट करने का और फाइनेंस में असिस्ट करने के लिए भी मतलब हेल्प करेगा आपको। चलिए ठीक है, सो आई गेस एडवांटेजेस आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एडवांटेजेस इज क्लियर, ओके। Turn on your camera. So advantages of the existing business को परचेज करने का क्या क्या एडवांटेजेस है वो तो क्लियर हो गया। What is the disadvantages? अब disadvantages क्या है आपके particularly existing business को परचेज करने का? तो यहाँ पर जो बिजनेस है वो कई बार डिपेंड करता है कि आप उस बिजनेस को कैसे रन कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप अपनी तरफ से बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो यू आर अवेयर अबाउट ईच एंड एवरी पॉइंट कि लाइक बिजनेस को हमने शुरू कैसे किया है, हम एडवर्टीजमेंट कैसे कर सकते हैं, बिकॉज यू आर स्टार्टिंग एवरीथिंग फ्रॉम द न्यू फेज। बट वंस यू आर ऑलरेडी टू परचेज द एग्जिस्टिंग बिजनेस, यू आर अनअवेयर अबाउट सो मेनी बेसिक पॉइंट, समटाइम वीकनेस ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस टाइप। तो कई बार हम ऐसे सिचुएशन में आ जाते हैं जहां पर हम डिसीजन ले नहीं सकते हैं प्रॉपरली बिकॉज दैट बिजनेस इज ऑलरेडी रनिंग, ठीक है। So sometimes it is difficult to take so many decisions in the business because that business is already in the running mode. Second है कि आपका जो वर्क फोर्स है they are already
in or that situation जहां उनको एक हैबिट लगा हुआ है एक वर्क एटमोस्फेयर का. If you will try to change it, sometime the workforce will become rigid. वो रिजिड बन जाएंगे और आपको बहुत मुश्किल होगी उनके साथ डील करने में. ठीक है. सो कई बार जो बायर्स हैं वो वर्कफोर्स का एटीट्यूड को चेंज करना चाहते हैं, वर्किंग एटमोस्फेयर को बदलना चाहते हैं, बट इट विल टेक सो मच टाइम. कई बार आपको उसके लिए वर्कर्स जो है आपको तुरंत से फ्लेबल मोड में नहीं आएंगे. So you have to work with them. You have to effort. You have to give your time. You have to spend money on the training and all those things. So this can be one of the disadvantage. Second thing, third thing, like whatever business you purchase, that is already outdated in the market. The machinery they are using, that is of the conventional way. So you just need to replace so many items within some time. कुछ ही समय में आपको बहुत सारी चीजें रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी, तो additional cost can be incurred. ठीक है. Fresh money you have to apply for the old stock. Next one is fresh money you have to invest for purchasing the latest or the technological product. Next one is goodwill matter. Like if the goodwill is deteriorate position पे है, तो कई बार हो सकता है कि आप बिजनेस में चाहे कितना भी इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट लेकर आओ, लेकिन वो इमेज जो है ना कहीं आपके नए प्रोडक्ट पे ट्रस्ट करने में कस्टमर को दिक्कत करेगी. हो सकता है कस्टमर के नॉट एबल टू ट्रस्ट ऑन योर प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ द brand or image which is associated, that is earlier that was not working properly. So these things are disadvantages of the existing business. So I guess these points are clear to all of you. In the next class, what I'm thinking, let's start with one case study. Case study करते हैं कि कौन सी कंपनी ने existing business को, मतलब कौन से entrepreneur ने existing business को purchase किया है और उसका current situation क्या है. ठीक है ना? क्लियर है? यस मैम. तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उस केस स्टडी को कंप्लीट कर लेंगे कि बिजनेस में एग्जिस्टिंग जो आपका कोई एंटरप्रेन्योर जिसने एग्जिस्टिंग बिजनेस को परचेज किया है उसका क्या सिचुएशन है अभी के टाइम पे. ठीक है. और उसको क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी. तो जैसे हम लोग हर दिन सक्सेस स्टोरी करते हैं ना, वो केस स्टडी भी एक दिन कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है. फिर नेक्स्ट उसके बाद फ्रेंचाइज के बारे में पढ़ेंगे. फ्रेंचाइज जो है कैसे अगर आप मार्केट में एंटर करना चाहते हैं तो हाउ यू कैन यूज द फ्रेंचाइज सिस्टम. ठीक है. चलिए, so let's move toward our today's success story and that is about मैम डिसएडवांटेज कैसे बता सकते हैं? हाँ क्या डिसएडवांटेज है. क्या हो गया? फिर से रिपीट कर दीजिए ना. पहला तो ये है बेटा कि देयर इज अ चांसेस, यहाँ पर आपका बहुत हाई चांस है कि आपका जो वीकनेस ऑफ द बिजनेसेस के बारे में आपको ज्यादा नहीं पता होगा. तो थ्रेट और वीकनेसेस को एनालाइज करना मुश्किल हो सकता है. सेकेंड है आपके साथ कि अगर गुडविल अच्छा नहीं है उस बिजनेस का तो दैट इज गोइंग टू अफेक्ट योर बिजनेस एज वेल. थर्ड सिचुएशन है कि अगर आपका वर्कफोर्स जो होगा उनका एटीट्यूड दैट कैन नॉट बी चेंज वेरी क्विकली बिकॉज दे आर इन द रिजिड पोजिशन और ऑलरेडी हैबिचुअल इन वर्किंग इन दैट एटमोस्फेयर. तो यू हैव टू गिव एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, टाइम लगाना पड़ेगा, पैसे लगाने पड़ेंगे. हो सकता है कि आउटडेटेड मशीनरी वहां यूज किया जा रहा हो, आउटडेटेड मैकेनिज्म हो सिस्टम का, तो उसको भी आप चेंज करोगे तो आपको फिर एडिशनल पैसा लगाने की रिक्वायरमेंट है. तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस. क्लियर? यस मैम. Okay, so let's move toward our today's success story. Okay, how many of you are purchasing shares? How many of you are investing money in shares? Raise your hand. कितने लोग हैं जो शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं? मैम शेयर मार्केट में कितने लोग हैं जो पैसा लगाते हैं? आई एम आस्किंग अबाउट दिस क्वेश्चन. ये क्वेश्चन बताइए, कितने लोग हैं जो पैसा लगाते हैं शेयर मार्केट में? अभी तक स्टार्ट नहीं किया मैम. नहीं किया स्टार्ट. ठीक है. तो Zerodha क्या है? What is this company basically working? तो अगर मैं बात करूं 20,000 since 2000 अगर आप देखा जाए तो स्टॉक मार्केट जो है दैट इज एट द स्काई रॉकेटिंग. मतलब शेयर्स बाजार देख रहे हो आप क्या सिचुएशन है. दे आर एक्सट्रीम बूम. मतलब शेयर बाजार आपका बहुत इंक्रीज हो गया है. यस, इन द टाइम ऑफ द कोविड दैट वाज इन द डिक्लाइन स्टेज, बट यस 2000 के बाद से देखा जाए शेयर मार्केट जो है वो बहुत ही अच्छे पोजीशन पे रहा है.
तो जो Zerodha है that was basically introduced in 2010 by two brothers and Nitin and Nikhil Kamath. So it is founded by the two person Nitin and Nikhil Kamath, both are brother, and it is founded in 2010. Now the question is that what Zerodha is doing, and its name, what its name is suggesting. So it's made up of two words, zero plus rodha. So zero means zero matlab bilkul nil, and rodha means obstruction. Like you are able to purchase the shares without any obstruction. That is the meaning of Zerodha. ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? So its headquarter is in the Bangalore. And Zerodha जो है, it is a financial service company है, because it is dealing with the shares and it is dealing with the finance. That's why it is registered with the Security Exchange Board of the India. Security Exchange Board of India जो है, SEBI जो है, वो हमारे कंट्री में एज अ रेगुलेटरी बॉडी है जो सिक्योरिटी से रिलेटेड सारे के सारे प्रोविजंस और कंप्लायंसेस बनाती है, जो हर कंपनी को फॉलो करना है, खासकर उन कंपनीज को जो लिस्टेड कंपनीज है. अब क्वेश्चन आता है कि हु आर द लिस्टेड कंपनीज? तो लिस्टेड कंपनीज वो कंपनीज है जो शेयर्स को पब्लिक को सब्सक्राइब करने का ऑप्शन देती है. जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा रिलायंस लिमिटेड, ठीक है. तो जो लिमिटेड कंपनीज होती हैं, यानी जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं, दे आर बेसिकली अलाउड टू प्रोवाइड शेयर, सेल द शेयर्स टू द नॉर्मल पब्लिक. ठीक है. तो Zerodha जो है एक फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है जो कि सेबी के द्वारा रजिस्टर्ड है, और यहाँ पर आपके इट इज अ मेंबर, एंड अ मेंबर भी है किसकी? एनएससी की. एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इन सब में ये एक रजिस्टर्ड कंपनी की तरह इट इज वर्किंग. Zerodha जो है उसके बारे में हम देखते हैं कि इसका मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया हाईलाइट कि इसका बैंगलोर में हेडक्वार्टर है. ये इंडस्ट्री किसका है? फाइनेंस का है. फाउंडर कौन है? निखिल कामत एंड निखिल कामत. रेवेन्यू अगर इसका 2021 का देखे तो लगभग 2729 करोड़ का इनको रेवेन्यू हुआ है. मेरा मतलब कि इनका पूरा टोटल सेल हुआ है इतने का. प्रॉफिट इसमें से इनका है 1122 करोड़. और इस तरीके से Zerodha जो है वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है आपके ब्रोकरेज कंपनी के लिए. ठीक है. अब जैसे मैं तुम लोग को बताती हूँ, अगर कोई भी पर्सन शेयर परचेज करता है, कोई भी पर्सन अगर किसी भी कंपनी का शेयर परचेज करता है, तो वी हैव टू फर्स्ट एनालाइज दैट व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ दैट कंपनी. शेयर पे जो पैसा लगाते हो, दैट कम्स अंडर द स्पेकुलेटिव रिस्क. स्पेकुलेटिव रिस्क का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा रिस्क होता है. अगर हो सकता है कि आपने जो 10,000 रुपया लगाया है वो 1,000 में कन्वर्ट हो जाए, so that loss can be possible, and that 10,000 is converted into 1 lakh, that can be even possible. So it is considered under the high risk. ठीक है. So Zerodha जो है, it is working an agent and it is basically help you to purchase the share, and the brokerage cost is very low. Like जब आप एजेंट के थ्रू कभी कोई शेयर्स को परचेज करते हैं तो there is always a commission. But if we are talking about Zerodha, so they are taking a very less commission and they will help you to purchase the shares. ठीक है. So basically what is Zerodha जो है वो किस किस चीजों में डील करता है? तो they are dealing with the currencies, commodities, trading, mutual fund वगैरह भी आप परचेज कर सकते हो. It's not about the shares only, but you can purchase the mutual fund. ठीक है. SIP वगैरह करा सकते हो, systematic investment plan and bonds वगैरह जो है, whatever is related with the financial सिक्योरिटीज वगैरह जो है, उन सब चीजों को आप Zerodha के थ्रू परचेज कर सकते हो. इनका जो कमीशन है वो बहुत ही कम है, वेरी लो कमीशन दे हैव. ठीक है. और Zerodha जो है ना, दिस इज बेसिकली वन ऑफ द फर्स्ट, इट इज अ फर्स्ट कंपनी हु इंट्रोड्यूस सच काइंड ऑफ फैसिलिटी इन आवर कंट्री. सो दे टुक द फैसिलिटी, टुक द एडवांटेज ऑफ द फर्स्ट मूवर एडवांटेज इनको मिला है. और Zerodha जो है वो ट्रेड मतलब बैरियर फ्री आपको ट्रेडिंग करने में हेल्प करती है. तो ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? जब हम शेयर्स को परचेज और सेल करते हैं, दैट इज अ ट्रेडिंग. तो सिक्योरिटी ट्रेडिंग वो कहते हैं उसको हम. तो मैंने नाम के बारे में तो बता ही दिया कि द Zerodha मीन्स नो ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कोई रुकावट नहीं है. ठीक है. और उसके अलावा दे आर ऑलवेज nowadays Zerodha is totally based on the technology. मतलब earlier it was working in the website and all, but अब आप Zerodha जो है, आप टेक्नोलॉजी, आप ऐप वगैरह डाउनलोड कर सकते हो, and you can use the Zerodha app. Grow app के बारे में तो तुम लोगों ने सुना ही होगा. Grow app. यस मैम, ऐड आता है. यस मैम. बिल्कुल है ना.
तो यहाँ पर आपका जो ग्रो ऐप है ना वो जीरोधा के टाइप का ही है, लाइक वेयर यू कैन इन्वेस्ट द मनी एंड यू कैन सी दैट how what profit you will get once you will invest the money in this particular company. So Zerodha is also nowadays working totally technology का utilization है. अच्छा, ये दो पर्सन जो आपको दिख रहे हैं यहाँ स्क्रीन पर, दिस टू पर्सन इज नितिन कामत एंड निखिल कामत. तो दोनों ये नितिन और निखिल कामत जो है वो दोनों भाई हैं. अब नितिन कामत की स्टोरी बताती हूँ. नितिन कामत जो है ही इज अ सीईओ ऑफ जीरोधा. जीरोधा के सीईओ हैं और ये सीईओ है मैटर फाउंडेशन के. अच्छा, रेन मैटर फाउंडेशन क्या है? तो इन्होंने एक पर्टिकुलर एक फाउंडेशन, एक एनजीओ स्टार्ट किया है. जीरोधा के थ्रू ही इन्होंने ये एनजीओ जो है इन्होंने स्टार्ट किया है. और ये एनजीओ क्या करती है? तो दिस एनजीओ इज बेसिकली वर्क फॉर द एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी. ठीक है, तो मतलब इम्प्रूव करना एनवायरमेंट को, एटमोस्फेयर को. तो फॉर दैट दिस रेन मैटर फाउंडेशन इज वर्किंग एंड इट इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. नॉन प्रॉफिट आपका ये ऑर्गेनाइजेशन है और ये जीरोधा और रेन मैटर फाउंडेशन दोनों के ही ये सीईओ है. नितिन जो है ही इज एन एल्युमिनस ऑफ द बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. ही कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम द बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड आफ्टर दैट इसको कंप्लीट करने के बाद ये अपने प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स मतलब जो बिजनेस वगैरह से रिलेटेड जो ट्रेडिंग होती है उसमें ये सेल्फ एम्प्लॉयड थे. ठीक है, लेटर इन्होंने सीनियर टेली सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए काम भी किया है. कहाँ पर? एज अ डेजिग्नेशन सीनियर टेली सेल्स एग्जीक्यूटिव. कहाँ पर काम किया है? मणिपाल इन्फोकॉम में. Okay, so I guess this point is clear. Yes, ma'am. ठीक है, और अगर हम नेक्स्ट बात करें, इन्होंने पहले सीनियर टेली सेल्स एग्जीक्यूटिव मणिपाल इन्फोकॉम में काम किया और फिर ही बिकम द पार्टनर ऑफ द कामत एसोसिएट. तो ये कामत एसोसिएट नाम का इन्होंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, वहां पर भी ये पार्टनर रहे. नितिन जो है he collaborated with his younger brother Nikhil to found Zerodha. तो फिर बाद में इन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर इस Zerodha जो कंपनी है उसको बेसिकली स्टार्ट किया, फाउंड किया. निखिल जो है इज द यंगर कामत ब्रदर. जो निखिल है ये काम मतलब ये दोनों में ये छोटे हैं. ठीक है, और ये को फाउंडर है जीरोधा के और ही इज ऑल्सो को फाउंडर ऑफ ट्रू बीकॉन. तो बीकॉन एक एसेट मैनेजमेंट फर्म है जिसके भी ये को फाउंडर है. और निखिल जो है ये ड्रॉप्ड आउट है. तो ही इज अ ड्रॉप्ड आउट स्टूडेंट. मतलब इन्होंने अपनी 10th क्लास के बाद ही इनको ट्रेडिंग का इतना ज्यादा मन था, इतना इंटरेस्ट था कि व्हाट ही डिड, ही बेसिकली ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज स्कूल व्हेन ही वाज 16. मतलब क्लास 10th के बाद स्कूल छोड़ दिया. उसके बाद इन्होंने ट्रेडिंग की तरफ मूव ऑन किया. और निखिल जो थे उन्होंने सेल फोन यूज किया अपने बिजनेस के लिए सबसे पहले. और ये सेल फोन उन्होंने पता है 10th क्लास में खरीद लिया और वो भी ओल्ड सेल फोन, मतलब पुराना कोई सेल फोन परचेज कर लिया ताकि ये बिजनेस कर पाए. तो इन्होंने जब इसको परचेज कर लिया उसके बाद कुछ ही दिन के बाद इन्होंने एक कॉल सेंटर को भी ज्वाइन कर लिया. जब ये 17 के थे तो ही बेसिकली ज्वाइन अ कॉल सेंटर. और यहाँ पर वो दो काम करते थे, एक तो कॉल सेंटर का जॉब करते थे, दूसरा जो खाली टाइम मिलता था उसमें ट्रेडिंग देखते थे, किस तरीके से शेयर मार्केट में पैसा लगा, ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, लेजर टाइम में जब खाली समय मिलता था. निखिल जो थे वो इतना ज्यादा ट्रेडिंग में और एसेट मैनेजमेंट में वो इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गए कि इन्होंने बहुत सारे फ्रेंड्स का और कलीग्स का पैसा भी मैनेज करना शुरू कर दिया. इन्होंने उनको एडवाइस देना शुरू किया कि कहाँ पैसा लगा सकते हो, कहाँ पर आपको एक्सपीरियंस मतलब कहाँ पर आपको बेनिफिट होगा. और ये सब चीजों को करते करते ही बेसिकली गॉट बोल सकते हैं अ डीप नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन द ट्रेडिंग एंड द एसेट मैनेजमेंट. ठीक है, और उसके बाद उन्होंने कॉल सेंटर का जॉब छोड़ दिया और उसके बाद अपने भाई के साथ वही जीरोधा में फिर ये लग गए. सो निखिल जो है वो बहुत ही ब्रिलियंट ट्रेडर हैं एक तरीके से. और जीरोधा के सारे रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड ये सारी चीजें जो है ना ये खुद से मैनेज करते हैं. तो ही मैनेजिंग ऑल द ट्रेडिंग एक्टिविटी रिलेटेड विद जीरोधा.
अभी जीरोधा के पास लगभग बहुत बड़ा टीम है, दे हैव अराउंड 1300 एम्प्लॉइज, इनके पास 1300 एम्प्लॉइज हैं। और जीरोधा की स्टार्टअप स्टोरी तो हमें पता ही है कि किस तरीके से इंडियन स्टॉक मार्केट में नितिन और निखिल जो है दोनों के कंट्रीब्यूशन से हाउ इट वाज स्टार्टेड, हाउ द स्टोरी स्टार्टेड ऑफ जीरोधा। ठीक है, सो इट वाज स्टार्टेड इन 2010। इंडिया का पहला डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म था, जहां पर कोई पर्सन नहीं, यहाँ पर आपका ये कंपनी इट इज वर्किंग फॉर दैट। 2013 में they basically provide a user friendly platform where the people can easily purchase and sell the stock. 2014 में they started educating. अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा टर्म आता है, तुम लोग को मैं बताती हूँ कि if you start talking about the biscuits, कितने लोग हैं जिनको बिस्किट्स के बारे में पता है, like hide and seek, Bourbon, Parle G, Yes, how many of you? सबको पता मैम। यस मैम, सबको पता। This is a very this is a FMCG product and everyone is consuming it. True? तो लगभग बिस्किट्स और ये सब चीज बारे में हमें बहुत अच्छे से नॉलेज है, लेकिन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट शेयर बाजार, डू यू हैव अ नॉलेज अबाउट इट? नो। ट्रू? सो नितिन एंड निखिल दे बोथ अंडरस्टैंड कि अगर हम इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, कंज्यूमर्स को एजुकेट नहीं करेंगे, नो वन इज रेडी टू बेसिकली शो कंसर्न टुवर्ड द ट्रेड मार्केट। हर एक कोई को अपने पैसे को इंक्रीज करना है, हर एक कोई को इन्वेस्टमेंट करना है, बट कहाँ करना है, दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। सो व्हाट ही स्टार्टेड डूइंग इन 2014, दे स्टार्टेड अ वेरिसिटी, इन्होंने जीरोधा वेरिसिटी नाम से एक ब्रांड अपने मतलब जीरोधा के अंडर में एक बेसिकली एक प्लेटफॉर्म शुरू किया वेरिसिटी नाम से, जहां पर इन्होंने लोगों को एजुकेट करना शुरू कर दिया कि आप कहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं, ट्रेडिंग में कौन कौन सा रिस्क है, ये सब चीजों के बारे में, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल मार्केट के बारे में बताना शुरू किया। 2015 में दे लॉन्च अ रेन मैटर, जो मैंने बताया था कि वो फाउंडेशन को भी इन्होंने स्टार्ट किया। 2015 में मतलब फरवरी 2015 में दैट हैपेंड एंड इन 2015 सितंबर में इन्होंने एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया जिसका नाम है काइट। ये सब जीरोधा के अंडर में ही ये सब चीजें स्टार्ट हुई हैं, रेन मैटर, वेरिसिटी, काइट। उसके बाद 2015 में दे बेसिकली ट्रेड एपीआई रिवॉल्यूशनाइजिंग द ट्रेडिंग इकोसिस्टम इन इंडिया। 2016 में इनके पास लगभग 1 लाख एक्टिव क्लाइंट आ गए। मार्च 2017 में इन्होंने क्वाइन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया। 2019 में सबसे लार्जेस्ट स्टॉक ब्रोकर बन गए। जून 2019 में इनके पास 10 लाख से ज्यादा कंज्यूमर्स थे। मार्च 2020 में 1100 करोड़ रुपीस का इनको रेवेन्यू आया, जिसमें से 430 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ। अप्रैल 2020 की अगर हम बात करें तो ये लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्रेडिंग, सिर्फ इन्होंने 7 मिलियन ट्रेड्स अ डे, ये मतलब एक रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया इन्होंने। जून 2020 में इन्होंने लगभग 700 एम्प्लॉय, मतलब कंजर्वेटिवली वैल्यूड इटसेल्फ एज अ $1 बिलियन एंड इशूड स्टॉक। स्टॉक पता है क्या होता है बेटा? स्टॉक होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन पेमेंट। ठीक है, यहाँ पर आप अपने एम्प्लॉइज को स्टॉक बेचते हो कंपनी का। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने लगभग 65 करोड़ का स्टॉक जो है 700 एम्प्लॉइज को दिया। और अब 2020 में दे वोन द ईटी स्टार्टअप ऑफ 2020। So this is how the story was basically of the Zerodha was started and where it is right now. We all are able to see the success of this particular company. So जब Zerodha पहली बार जब आया, मतलब जब इंडिया में जब it was started, तो इनके पास एक साल में लगभग 3000 अकाउंट ही ओपन हुए, उससे ज्यादा ओपन नहीं हुए। बहुत सारे पीपल जो थे वो क्वेश्चन करने लगे इनकी क्वालिटी पे, लाइक सिक्योरिटी, क्वालिटी, बहुत सारी चीजें मैटर करती है क्योंकि आप आफ्टर ऑल पैसे लगा रहे हो, है ना। सो जीरो के लिए ये थोड़ी सी ट्रस्ट इश्यू बहुत मैटर करने लगा। और जीरोधा ने लेकिन तब भी कोई ऑप्शन एडवर्टीजमेंट का चूज नहीं किया, यानी कि सोचो जीरोधा ने एक बार भी एडवर्टीजमेंट अभी तक नहीं किया है, 1 रुपया भी एडवर्टीजमेंट में खर्च इनका नहीं हुआ है। इनका फोकस सिर्फ ये था कि दे वांट टू बेसिकली हेल्प द कम्युनिटी फॉर ट्रेडिंग। और इसीलिए जीरोधा ने धीरे धीरे मतलब इन्वेस्टर्स जो हैं वो इन पे ट्रस्ट करे, तो दे स्टार्टेड प्रोवाइडिंग द बेटर सर्विसेज। एंड यहाँ पर वेरसिटी जो है लर्निंग मॉड्यूल ने इनको बहुत सारे कस्टमर्स बनाने में भी बहुत हेल्प किया है, क्योंकि वेरसिटी ने यहाँ पर क्वेश्चन आंसर सेशन होता था। वेरसिटी में क्वेश्चन आंसर सेशन था और एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म था
ट्रेडिंग से रिलेटेड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म था। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आंसर, जो भी डाउट थे वो क्लियर किए जाते थे, ठीक है, आपके ट्रेडिंग से रिलेटेड। अभी अगर हम बात करें तो लगभग मेजॉरिटी ऑफ द इनका जो भी ब्रांड है वो सारे के सारे ऑनलाइन बेस्ड है। बिजनेस मॉडल की बात अगर मैं करूं तो या एग्जैक्टली इनका हाई प्रॉफिट मार्जिन है, मतलब द वन फैक्टर एडिंग हाई प्रॉफिट मार्जिन फॉर द कंपनी। So comparatively to the other type of brokers, they are taking very low cost. Top brokers में इसलिए भी है बहुत कम for Zerodha as compared to some of the top brokers, ठीक है, ये बहुत कम इनका operational cost है। Okay, so I guess this story is clear to all of you, like how it was started, what is the situation of this company right now. I think this point is clear to all of you. This whole story is clear. Yes, ma'am. So how it was started? Clear हो गया सबको? Yes, ma'am. 2 brothers ने बनाया। ठीक। And what is why it is basically used? अब क्यों Zerodha use होता है? So it is basically used for, it is a broker, it is working as a broker. Like जैसे आपके mediators होते हैं ना जो आपको shares को purchase करने में help करते हैं, agent के through आप purchase करते हो, so they are working as an brokers and they are basically taking very low cost for helping you to purchasing and doing trading. ठीक है, and the background I already told you about the founders. Like one person is the school dropout. He did basically उन्होंने schooling भी complete नहीं की है, but he is very much skilled in the trading because from a very earliest age they started doing that. Like they basically interested toward the trading. So I guess these points are clear to all of you, right? Yes, ma'am. So anyone have any doubt? कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो जो क्लियर नहीं हुआ है? Anyone have any doubt in Zerodha? No, ma'am. No, ma'am. Like how it was started, what is the rise up Zerodha किस तरीके से start हुआ, how it is working. अच्छा, इसका मिशन और विजन क्या है? So it is creating a world without any brokers. मैंने वही बताया था ना आपको. So they benefiting the stakeholders, मतलब जिसके पैसे लगे उसको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट फाइनेंशियल मार्केट में. So for decreasing the number of the brokers in the market, they basically started the Zerodha. ये कंपनी जो है ये they are providing the best possible customer experience with the help of support and services. अच्छा हाँ, Zerodha कुछ प्रॉब्लम्स को भी इन्होंने फेस किया था, वो शायद मैंने आपको नहीं बताया, मैं बता देती हूँ कि व्हाट द प्रॉब्लम Zerodha फेस इन द अर्ली स्टेज ना. इनके साथ ना ट्रस्ट वाली प्रॉब्लम आ गई थी बहुत ज्यादा, क्योंकि इनके पास ना कस्टमर सर्विस बहुत पुअर था. तो लाइक द पीपल हैव द क्वेश्चंस दे कैन नॉट आस्क, ठीक है, एंड दे आर नॉट at all advertising. So this is also one of the important fact, like the people are very much unaware about it, ठीक है. तो इसी वजह से कुछ ट्रस्ट इश्यूज भी इस कंपनी को फेस करना पड़ा था, ठीक है. एक तो इनके पास कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं था जिसके थ्रू ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाए कंज्यूमर्स को, और सेकेंड इनके साथ प्रॉब्लम था कि कस्टमर सर्विस इनका बहुत पुअर था, ठीक है. So like the people sometimes they are not able to trust, but धीरे धीरे they improve their service centers and the customer service. Like if you have a questions, and I already told about the veracity. Okay, चलिए. So I guess for today's class these all points are clear to all of you. So in the next class we will move toward the new story, and we are going to do the case study about the how the company purchased the existing business, how the entrepreneur purchased the existing business, and what is the current scenario. Okay. So we'll meet in the next class. Anyone have any doubt? Anyone have any doubt? No, ma'am. No, ma'am. Okay. See you all in the next